Good afternoon, everyone. So, this is our first lecture of Unit 1, Computer Networks. The code is 3340702. So, in this lecture, we are going to cover introduction and basics of computer network. I am Prerna Gupta, lecturer in Computer Engineering Department in Shri KJ Polytechnic, Bharuch. So, this is teaching scheme, 3 lectures, 2 practicals, 3 hours of lectures, 2 hours of practicals, and so credit is 5. Accordingly, you can see ESC and PA marks, and total marks is of 150. Practical examination will be of 50 marks, and theory exam will be of total 100 marks. So course outcomes are: first is describe various protocols models in networks. At the end of this course, you will be able to know, or you will be able to describe various protocols models in networks. Second, explain operations of TCP, HTTP, and DNS. Third is illustrate use of subnets, IPv4 and IPv6 in computer networks. Fourth is design simple computer networks, establish and commission simple computer networks. And last one is identify and solve network operational problems. And these are your 5 units. First is basics of computer networks. Second is reference model for network communication. Third one is transmission media. Fourth one is network devices. Fifth one is IP protocol and network applications. So unit 1, uh, basics of computer. In this we will cover introduction, definition and history of computers. Then third is network criteria, network applications, network hardware and definition of protocol. So starting with introduction. So before starting, I just want to tell you that if we want to transfer data or information between computer, there are 2 ways. First is without network and second is with the help of network. तो 2 तरीके हैं आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. एक तो विदाउट नेटवर्क, यानी जिसमें हम इंटरनेट नेटवर्क यूज नहीं करेंगे, और दूसरा है हम नेटवर्क की मदद लेंगे. तो अगर हम नेटवर्क की मदद नहीं लेते हैं तो क्या होता है, तो प्रोसेस इन इज टाइम कंज्यूमिंग. यानी अगर जैसे कि अगर हमें ट्रांसफर करना है डेटा, तो हम सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इन सब की मदद लेंगे और डेटा को हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. दूसरा 1-to-1 कम्युनिकेशन मिलेगा, लेकिन इट इज नॉट वर्ल्ड वाइड. 1-to-1 कम्युनिकेशन किसके बीच में मिलेगा? जिस एक कंप्यूटर से जिससे हम डेटा ले रहे हैं और दूसरे में जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं. थर्ड वन इज रिक्वायर्स मोर मनी. मतलब जैसे जैसे हम रिसोर्सेज ज्यादा चाहिएंगे, डेटा को हमें ट्रांसफर करना है तो उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिएगा. सो इट कंज्यूम्स मोर मनी. And last one is requires more resources. So ultimately to purchase more number of resources, because resources की requirement ज़्यादा है और money की भी ज़रूरत बढ़ जाती है. So these are the disadvantages if we are not using network. And if we are using network, then transfer information all over the world. You can transfer information all over the world. You can see number of computers are connected with internet. Second is it is fast, it is easy, it is secure, and it is reliable. Reliable and secure means कि आपका डेटा सलामत रहेगा. रिलायबल यानी आज डेटा है, आज आपने डेटा कुछ डाला है या शेयर किया है तो वो लाइफ टाइम रहेगा. इट इज नॉट डिलीटेड. कोई भी डेटा है वो डिलीट नहीं होता है, सिर्फ आप उसके ऊपर ओवरराइड करते हैं. आपका जो भी डेटा होगा वो हमेशा रहेगा. सो इट इज मोर रिलायबल. नाउ व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? तो कंप्यूटर नेटवर्क is defined as 2 or more computers are connected in such a way that they can share information and resources. A computer network is a group of devices connected with each other through a transmission medium such as wires, cables, etc.
तो आप देख सकते हो ये वाली फिगर में कि एक कंप्यूटर है, उसको हमने नंबर ऑफ रिसोर्सेस के साथ कनेक्ट किया है। सर्वर है, प्रिंटर है, मॉडेम है, वाईफाई राउटर है, अगेन प्रिंटर। यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क बन रहा है, ये वायर्ड नेटवर्क बन रहा है। आपको अगर कनेक्ट करना है फिजिकली, देन यू रिक्वायर वायर्स और यू कैन से केबल्स। और वाईफाई तो है तो वो हम ब्लूटूथ से या फिर रेडियो वेव्स या किसी और की मदद से हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली एक नेटवर्क बनता है जिसमें हम रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, इंटरनेट शेयरिंग करते हैं, likewise. So the purpose of having computer network is to send and receive data stored in other devices over the network. Means purpose क्या है कि आप पीसी लैपटॉप में से डेटा शेयर करना है तो हम शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई डिवाइस शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। तो ये पर्पस है कि एवरीथिंग वी वांट टू शेयर, देन वी कैन यूज नेटवर्क। इट कैन बी रिसोर्सेस और it can be a file or any data. So the concept of connecting computers for sharing resources or data are called as networking. ये जो कंसेप्ट है कि हमें डेटा और रिसोर्सेज शेयर करने हैं, तो इस कंसेप्ट को बोलेंगे नेटवर्किंग। कैसे होगा? कंप्यूटर कनेक्ट करके। सो व्हाट इज हिस्ट्री? तो शुरुआत कहाँ से हुई कि नेटवर्क की जरूरत क्या पड़ी? तो मिड 60s में ऑर्गेनाइजेशंस थी और मैन्युफैक्चरर्स थे, वो क्या करते थे, वो अपना अपना डेटा या रिसर्चेस डेवलप करते थे लेकिन शेयर नहीं कर पाते थे। तो आरपा नाम की एजेंसी थी, उसमें वो एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में आरपा नाम की एजेंसी थी, उसने इंटरेस्ट दिखाया कि हम एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल बनाते हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा ताकि हम अपने रिसर्चेस शेयर करें। फिर 1967 में आरपा ने एक स्मॉल नेटवर्क डेवलप किया बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। वो एक लोकल लेवल पे था। जब वो कौन सी जगह पे था? तो एसीएम पे, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी। फिर 1969 में आरपा नेट ने फोर नोड्स कनेक्ट किए यूएसए की अलग अलग जगह के। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, देन यूएस यूसीएसबी, एसआरआई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा। तो ये 4 अलग अलग जगह थी जहां ये आरपा नेट ने अपने 4 नोड डेवलप किए। नोड मीन्स अ कंप्यूटर और एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। फिर 1972 में धीरे धीरे फिर टीसीपी डेवलप किया, फिर आईपी डेवलप किया, so that end-to-end delivery of packets means a simple kind of message share हो सके। फिर 1973 में इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल बन गया टीसीपी आईपी। सो दिस वाज बेसिकली द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। यानी इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? तो शुरुआत एक 4 कंप्यूटर कनेक्ट करके हुई, फिर वो एक ही जगह पे थे, एक यूनिवर्सिटी और यू कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन में थे। फिर 4 अलग नोड पूरी एक स्टेट में अलग अलग जगह से किए, मीन्स नॉट टुगेदर बट एट फार डिस्टेंस। फिर धीरे धीरे उसमें और इवोल्यूशन होता गया और ऐसे करके फिर प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए टीसीपी आईपी ताकि एंड टू एंड डिलीवरी हो सके। So these are characteristic of network. तो फर्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। इसका मतलब है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के अंदर वो अपने रिसोर्स शेयर करेंगे। तो गोल क्या है? तो to make all programs, data and devices available to anyone on the network without considering physical location of the resource and user. इसका मेन गोल ये है कि जहां पे भी यूजर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी प्लेस, उसकी लोकेशन, आप जो भी जितने भी डेटा है या रिसोर्स है वो नेटवर्क में है तो हर एक यूजर को वो मिलेगा, चाहे वो वहीं पास की फिजिकल लोकेशन पे हो या कहीं दूर की फिजिकल लोकेशन पे हो। इम्पोर्टेंट इज कि वो नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए। सो रिसोर्स शेयरिंग इज द इज द गोल, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक। गोल भी है और कैरेक्टरिस्टिक भी है।
कि जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे उसकी शेयरिंग होनी चाहिए किसके साथ, जितने भी नोड्स और यू कैन से यूजर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड है उनके साथ। नेक्स्ट इज हाई रिलायबिलिटी। सो नेटवर्क प्रोवाइड्स हाई रिलायबिलिटी बाय हैविंग alternate resources of supply. All files could be replicated on 2 or more machines, so if one of them is unavailable then other copies could be used. So high reliability यानी कि कोई भी अगर फाइल बनी है तो उसकी रेप्लिकेशन मीन्स उसकी डुप्लीकेट एक से ज्यादा मशीन पे स्टोर करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि अगर एक फाइल मिसिंग होती है तो दूसरी जगह से फाइल हमको इजीली मिलेगी। इसको कहेंगे हम रिलायबिलिटी, कि कभी भी डेटा आपका लॉस्ट नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर एक जगह से लॉस हुआ है तो उसकी कॉपीज हमने मल्टीपल जगह स्टोर कर रखी है, जिससे कि आपको डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज सेविंग मनी। सो नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। नेटवर्क में हमेशा 2 से ज्यादा कंप्यूटर रहेंगे। मोस्टली इन नेटवर्किंग वन कंप्यूटर वर्क एज सर्वर एंड अदर एज क्लाइंट। कैसे वर्क होता है, सर्वर और क्लाइंट की तरह होता है। So it requires less hardware, that's why it saves money. तो सारे रिसोर्सेस जो होते हैं वो हम किसमें इंस्टॉल करते हैं, सर्वर पे, पर जो सिर्फ क्लाइंट की जरूरत का सामान है वो ही हम क्लाइंट को देते हैं। उसके अलावा बाकी के सारे जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो सर्वर पे रहेंगे और सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर है उसको हम इसमें लेंगे, सर्वर क्लाइंट पे। बाकी सब कहाँ स्टोर होगा, सर्वर पे। नेक्स्ट है पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। So using a network, it is easy for 2 or more person who live far apart to write a report together. When one person makes a change to an online document, the other can see the change immediately instead of waiting for several days. अब पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम के लिए हम एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि अगर 2 पर्सन एक ही रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, रिपोर्ट यानी कोई भी एक प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रहे हैं, तो अब काम कर रहे हैं तो फिर अगर उनकी फिजिकल लोकेशन दूर है तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि फिजिकल लोकेशन दूर है तो फिर शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब शेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो फिर नेटवर्क की यहाँ जरूरत पड़ेगी। नेटवर्क आया तो क्या होगा कि अगर मैंने एक यूजर ने कुछ चेंज किया है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, तो दूसरे यूजर को 7-8 दिन या 10-15 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, उसको तुरंत ही पता चल जाएगा चेंज कैसे हुआ है और वो क्या करेगा, वो उसको शेयर करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। तो नेटवर्क इज एबल टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस, मीन्स कि नेटवर्क जो है वो सिस्टम में परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकता है। कैसे, स्केलेबिलिटी का मतलब है एक्सपैंड करना। एक्सपैंड यानी आप नेटवर्क को इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर 4 कंप्यूटर का नेटवर्क है तो हम उसमें 5, 6, 7, 8 उसको इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से उसको स्केलेबिलिटी बोलेंगे, मतलब नेटवर्क ऐसा होना चाहिए और होता है कि वो उसकी जो कैपेबिलिटी है कंप्यूटर्स को या फिर नोड्स को एक्यूमुलेट करने की, वो ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट। We are able to talk with any person at any part of the world with a low cost compared to telephone system. You all know कि टेलीफोन सिस्टम से क्या होगा कि हम कहीं पे भी 2 यूजर है वो कोई भी एंड में हो दुनिया के, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंस्टेड के फिजिकली जाके एक दूसरे को मिलना फिर कम्युनिकेट करना। इट इज बेटर दैट कि आप टेलीफोन से बात कर लो। सो इट इज अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग। नेक्स्ट इज टाइम सेविंग। सो फॉर एग्जाम्पल ईमेल सर्विसेज रिक्वायर्स लेस टाइम कंपेयर टू पोस्टल सर्विसेज। सो ईमेल सर्विसेज से क्या होगा कि हमने अभी ईमेल किया तो विद इन सेकेंड्स और यू कैन से मैक्सिमम विद इन मिनट
आपका ईमेल या जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो वो तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आज पोस्ट करेंगे तो 3 से 4 दिन बाद मिलेगा। सो बेटर है कि ईमेल करें। सो इट इज अल्टीमेटली इट सेव्स टाइम। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट लोकेशन। सो वी कैन चेंज द लोकेशन ऑफ नेटवर्क और एनी डिवाइस एट एनी टाइम। मतलब अगर आपने कोई नेटवर्क बनाया, अगर उसकी इक्विपमेंट की कोई इक्विपमेंट है या नोड है, उसकी जगह आपने फर्स्ट लोकेशन पे रखी और पर आपको थोड़े टाइम के बाद चाहिए कि वो 10th लोकेशन पे रहे, तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन पे रखी है तो फर्स्ट पोजीशन पे ही वर्क करना चाहिए, इट शुड ऑल्सो वर्क एट 10th पोजीशन। नेक्स्ट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ओके, यू कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय एडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे जैसे आप हार्डवेयर ऐड करोगे या फिर नए नए सॉफ्टवेयर ऐड करोगे, अल्टीमेटली यू आर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर नेटवर्क। नेक्स्ट इज नेटवर्क्स आर यूज्ड बाय पीपल। तो कौन से पीपल हैं या फिर कौन कौन उसको यूज करता है? तो एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन। तो एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन में कौन से हैं? तो www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई शॉपिंग वेबसाइट। So this is access to remote information. Access to remote information means our user sitting, or you can say a person who is sitting in uh, you can say somewhere in Tanzania can access to a e-commerce website which is stored on the server in USA. So from Tanzania, USA is remote. ओके, तो एनी पर्सन, जो भी पर्सन है वो तंजानिया से बैठ के यूएसए की साइट को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन। तो पर्सन, जो भी पीपल हैं वो रिमोट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। वी आर डूइंग चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, emails. So what is this? It is person to person communication. Then interactive entertainment, तो जो ऑलरेडी वीडियोज आपके अपलोडेड हैं या गेम्स आप डाउनलोड करते हो, तो ये सब क्या है? जो गेमर्स होते हैं वो सब यूज करते हैं गेम्स और उसको खेलते हैं। और तो और वीडियोज होती हैं, यूट्यूब चैनल इज देयर, सो यू कैन एक्सेस दोज वीडियोज। तो जो पीपल है वो कौन है इसमें? गेम यूज करने वाले हैं, वीडियो एक्सेस करने वाले हैं, सॉन्ग एक्सेस करने वाले हैं। सो इन शॉर्ट, रिमोट इंफॉर्मेशन है वो भी पीपल यूज कर रहे हैं। ओके, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है वो भी पीपल यूज कर रहे हैं। और इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, दैट इज यूजिंग प्लेइंग गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, देन सॉन्ग्स, playing songs and playing video. So ultimately everything is used by people. Next is advantages. So we will go one by one. So first is efficient management of resources, कि कौन से रिसोर्स को कैसे यूज करना है, वो मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट मीन्स, एफिशिएंट तब होती है कोई चीज जब उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में है और उसका नॉन यूटिलाइजेशन कम है। यानी 100% अगर यूटिलाइजेशन किसी भी चीज का होता नहीं है, पर अगर 90% वो यूटिलाइज हुआ है और 10% वो यूटिलाइज नहीं हुआ है, तब हम उसको बोलेंगे एफिशिएंट उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। तो ये हर एक रिसोर्स के लिए है। जैसे कि अगर प्रिंटर है तो दिन में अगर वो 10 घंटे अगर ऑफिस वर्किंग आवर्स है, उसमें से 9 घंटे प्रिंटर का काम हुआ और 1 घंटा काम नहीं हुआ, तो ऐसा बोलेंगे कि 90% उसका अच्छा इस्तेमाल हुआ और 10% वो आइडल रहा। सो इट इज एफिशिएंट। बट अगर ऐसा होता है कि सिर्फ 10% यूज हुआ, 90% इट स्टेड आइडल, सो इट इज नॉट एफिशिएंट, राइट? सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये तो एग्जांपल एक प्रिंटर का था, बट ऐसी और भी चीजें, और भी रिसोर्सेस हो सकते हैं, लाइक स्कैनर एंड एनी अदर। नेक्स्ट इज फास्ट डेटा शेयरिंग। एडवांटेजेस, वी ऑल नो कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं तो हम गूगल पे जो चाहे हम फटाफट सर्च कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली somebody has put his content on internet and you are accessing that content, so this is data sharing.
सो इट इज वेरी फास्ट। इंस्टेड के अगर किसी ने कुछ रिसर्च पेपर लिखा है, वो उसके पास फिजिकली प्रेजेंट है एंड वी हैव टू कॉल हिम, प्लीज शेयर योर रिसर्च पेपर, सो इट इज वेरी आई थिंक इट इज नॉट वेरी इम्पॉसिबल टू शेयर एट दैट इंस्टेंट, मतलब तुरंत की तुरंत शेयर नहीं होगा, वो वेट करना पड़ेगा by post or by physically meeting some person. So but with the help of internet, he can email or share in Google Drive. So fast data sharing is one of the advantage. Third one is keep information reliable and up to date. मीन्स गूगल पे जो भी, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मोस्टली रिलायबल होगी और अप टू डेट रहेगी। मान लीजिए कि अगर 2015 में किसी ने कुछ रिसर्च किया कि फॉर एग्जाम्पल कि एप्पल ट्री पे ऑरेंज भी उगते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ये कि अगर 2015 में ऐसा रिसर्च हुआ कि एप्पल ट्री पे हम ऑरेंज भी उगा सकते हैं और 2020 पे आया कि अपने एप्पल ट्री पे हम एप्पल, ऑरेंज और गुआवा भी उगा सकते हैं, तो 2015 में गूगल विल शो एप्पल ट्री कैन ग्रो ऑरेंज एंड एप्पल, बट इन 2020 कि भाई नया रिसर्च हो गया है तो ही विल अपडेट, ओके, गूगल विल अपडेट कि इन 2015 it was growing apple and orange, but in 2020 it is growing apple, orange and papaya. So if information will be reliable and up to date. Next is high reliability. High reliability I already told, reliability क्यों है, क्योंकि डेटा जो आपने आज डाला है वो 10 साल के बाद भी रहना चाहिए, मिलना चाहिए, तो ये रिलायबिलिटी आपको इंटरनेट देता है। रिलायबल पर्सन वो होता है जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, हम डिपेंड हो सकते हैं, जैसे आपकी मदर, if you are dependent on mother, she will fulfill each and every demand of you. Similarly, internet will fulfill each and every demand of yours, but boundary is there, limits are there according to the person who is your mother and Google or any other website who is giving your information, or from or whatever place where you are sharing or putting your information. Next is efficient communication, that I already told. Communication बहुत अच्छे से होता है, जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस है, चैनल्स है, वो ज्यादा टाइम आइडल नहीं रहते, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और सही तरीके से होता है, इसीलिए बोलेंगे हम एफिशिएंट कम्युनिकेशन। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, इट लैक्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस नहीं है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट? nodes are dependent on server, right? Client are dependent on server, printer is dependent on server, so resources are dependent on server, so it lacks independence. Next is it possess security difficulties, means your network is vulnerable, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपके नेटवर्क को हमेशा खतरा रहता है, कभी सिक्योरिटी अटैक आ जाए या कोई वायरस आ जाए या किसी भी टाइप की ऐसी घटना जिससे कि आपका नेटवर्क डाउन हो जाए, ठीक है, तो ऐसी जो चीजें हैं वो सिक्योरिटी डिफिकल्टीज में आती है। Next is robustness, it lacks robustness. Next is it allows for more presence of computer viruses and malware, that is already covered. Next is it light policing usage promotes negative attacks. तो नेगेटिव अटैक्स भी वो प्रमोट करता है, मतलब कोई इंसान ऐसा है कि पॉजिटिव चीज सीख रहा है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं वो नेगेटिव चीजें भी सीखते हैं, ठीक है, सो दैट इज नेगेटिव एक्ट्स हु इज मेकिंग वायरसेस, मालवेयर्स एंड एटसेट्रा। इट रिक्वायर्स एन एफिशिएंट हैंडलर, मतलब ऐसा हम मैम थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया। एफिशिएंट है, बट प्रैक्टिकली टोटल एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, सो वो एफिशिएंसी लानी है तो उसके लिए एक एफिशिएंट हैंडलर चाहिए कि आपका नेटवर्क अच्छे से डेवलप रहे, और नेटवर्क डेवलप करने के लिए हमको पैसा भी बहुत लगता है, इट रिक्वायर्स एन एक्सपेंसिव सेटअप, सो बट वन टाइम आपका खर्चा है, लेकिन इट विल वर्क फॉर नंबर ऑफ इयर्स, बट it is expensive if you are investing for the first time. Next is network criteria.
So effective and efficient network must be able to meet 3 criterias. मीन्स जो भी नेटवर्क है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट नेटवर्क है तो 3 क्राइटेरिया का वो मीट होना चाहिए. फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, सेकंड इज रिलायबिलिटी एंड थर्ड वन इज सिक्योरिटी. तो परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क जो है वो हम दो तरीके से बता पाएंगे, एक है ट्रांजिट टाइम और दूसरा है रिस्पॉन्स टाइम. तो ट्रांजिट टाइम क्या होता है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैसेज ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचने के लिए एक मैसेज को कितना टाइम लगता है, तो दैट इज ट्रांजिट टाइम. ट्रांजिशन, ओके, जैसे भरूच से अंकलेश्वर पहुंचने में कितना टाइम लगता है एक पर्सन को अगर वो टू व्हीलर पे जा रहा है, सो दैट इज ट्रांजिट टाइम. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम. सो द टाइम elapsed बिटवीन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स, यानी जैसे आपने गूगल पे आपने सर्च किया प्लीज लाइक वेराइटीज ऑफ एप्पल ट्रीज, तो आपने जैसे आपने इंक्वायरी की और उसके बाद रिस्पॉन्स कितने टाइम में आता है, राइट, तो दैट इज रिस्पॉन्स टाइम. यानी आपने अभी क्वेरी डाली और फिर आफ्टर 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स के बाद अगर वो जो पेज आपने रिक्वायर्ड है आपका वो आया है तो हम बोलेंगे कि वो रिस्पॉन्स टाइम है. So the performance of network depend on number of other factors. ठीक है, परफॉर्मेंस और भी चीजों पे डिपेंडेंट है, लाइक कि अगर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है तो परफॉर्मेंस इज अ टास्क, कि परफॉर्मेंस अगर जैसे 10 यूजर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि 20 यूजर हुए तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाए. फिर किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं, फिर हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज क्या है, फिर सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी क्या है, ये सब भी कुछ फैक्टर्स है जो परफॉर्मेंस जिस पे डिपेंड करती है. दो तो कंपलसरी है, एक ट्रांजिट टाइम और एक रिस्पॉन्स टाइम, बट सम अदर्स आर देयर जिसमें आएगा नंबर ऑफ यूजर्स, ट्रांसमिशन मीडियम एंड कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर. So next is reliability. Next criteria is reliability. तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवरी टाइम ऑफ अ नेटवर्क आफ्टर अ फेलियर एंड कैटास्ट्रॉफी इवेंट्स. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर यानी ऑल नेटवर्क्स फेल ओकेजनली, मतलब कभी ना कभी नेटवर्क फेल होता है, लेकिन कितनी ऑफन यानी कितनी जल्दी, राइट, कितनी जल्दी जल्दी वो फेल हो रहा है, यानी आज फेल हुआ फिर 10 दिन बाद फिर से फेल हो गया, फिर 5 दिन बाद फिर से फेल हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर डिसाइड करेगा कि रिलायबिलिटी कैसी है नेटवर्क की. नेक्स्ट इज रिकवरी टाइम ऑफ अ नेटवर्क आफ्टर फेलियर, यानी नेटवर्क जब फेल होता है तो उससे कितने टाइम में रिकवर होता है कि वापस उसी एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है. नेक्स्ट इज कैटास्ट्रॉफी इवेंट्स. तो कैटास्ट्रॉफी इवेंट्स कौन सी होती है, तो अर्थक्वेक, फायर, सुनामी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो रिलायबिलिटी कहाँ फेल होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवरी टाइम ऑफ नेटवर्क आफ्टर अ फेलियर और कैटास्ट्रॉफी इवेंट्स. कैटास्ट्रॉफी इवेंट आया तो यानी अगर अर्थक्वेक आया और यू कैन से फ्लड आया तो क्या होगा, सारे मशीन्स पानी में चले जाएंगे, या फिर अर्थक्वेक आया तो सारे मशीन्स दरार पड़ी जमीन में उसमें घुस गए, सो इस टाइम पे रिलायबिलिटी फेल हो जाती है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. उसमें आएगा फर्स्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो सेंसिटिव डेटा को है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, जैसे कि आपका ईमेल है लेकिन कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है, तो अगर कोई आपकी बिना इजाजत के अगर कोई ईमेल यूज कर रहा है सो दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस. नेक्स्ट इज वायरस. सो अ वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड कोड दैट डैमेजेस द सिस्टम. सिंपल, मतलब जैसे वायरस आपकी बॉडी को हार्म करता है वैसे वायरस कंप्यूटर को हार्म करता है. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वायरस डिलीट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं. how I don't know how they are working properly, but there are some softwares which are detecting, but हाँ वो वायरस डिटेक्ट करेंगे जो अब तक डेवलप किए गए हैं, अब तक मार्केट में है वायरस. अब आगे जो वाले वायरस है उसको डिटेक्ट करे तो हम मान सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर अच्छा है. ओके, सो
Here we are finishing network criteria. Next is network applications. So you can see number of applications are there. Financial services, marketing and sales, electronic messaging, manufacturing, directory services, information services, cellular telephone, cable television, teleconferencing, electronic data exchange. All these are network applications. In every field you will find network. So these are references, and here I am going to stop my lecture.